सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि स्टेट फाइल क्या होता है और हम उस स्टेट फाइल को रिमोट बैकएंड में कैसे रख सकते हैं और क्यों रखना होता है एग्जैक्टली रिमोट बैकएंड पे। रिमोट बैकएंड भी क्या होता है उसके बारे में भी जानेंगे एंड स्टेट फाइल के थ्रू हम क्या-क्या कर सकते हैं, स्टेट फाइल क्यों इम्पोर्टेंट है, स्टेट फाइल के साथ जो भी चेंजेस करते हैं या स्टेट फाइल में अगर कुछ चेंजेस करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं या क्या चीज़ शो करता है, हम उन सब के बारे में जानेंगे। इसमें मैंने कुछ पर्टिकुलर कमांड्स भी यूज़ किए हैं, कुछ तरीके भी यूज़ किए हैं जो जिसके बारे में मैंने पिछले कुछ वीडियोज़ में बात किया हुआ है। So also make sure to check those videos as well in this particular Terraform playlist. So yeah, let's get started and let's deep dive into the Terraform state file. So what is a state file in Terraform? So Terraform state file is a JSON kind of structure which acts as a source of truth. Okay, so you can use Terraform state file as to identify that what resources are being deployed and with what configurations. Okay, and it is a JSON kind of structure, so it also contains many details about all the resources that are being deployed, like they have IDs, dependencies हमें explicitly mention करने की जरूरत नहीं पड़ती Terraform में, तो your state file also shows कि okay, if this storage account is there, so it is dependent on the resource group that needs to be created before. So it shows many details. It can also show some sensitive details like some particular IDs, some keys, some passwords or IDs. ठीक है, तो state file can contain a lot of detail and it acts as a source of truth. बात आती है कि why does even we need a state file in Terraform? ठीक है, तो we can say that state file helps in mapping configurations to real world. तो it helps you in mapping कि तुम क्या बना रहे हो, क्या कोड में है, क्या रिसोर्स पोर्टल पे दिख रहा है. It acts as a mapping system. ठीक है, it also tracks changes effectively. क्या क्या चेंजेस हुआ है वो तुम्हें दिखा देंगे कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, ठीक है, क्या पर्टिकुलर नेम बदल रहा है, कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है, ठीक है. एंड एज आई टोल्ड यू इट्स आल्सो सपोर्ट्स द डिपेंडेंसी, supports and shows the dependencies. स्टेट फाइल काफी काम आता है टेराफॉर्म में, बिकॉज अगर तुम्हारा स्टेट फाइल ही उड़ जाता है तो फिर बहुत प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तुम्हें बहुत सारे मल्टीपल चीजें करना पड़ता है टू मेक द थिंग्स वर्क. हम वो सब चीजें देखेंगे, ट्राई करेंगे कि स्टेट फाइल में कहाँ क्या छेड़छाड़ करने से क्या चेंजेस, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है. ठीक है, सो लेट्स गेट टू आर VS Code. So in our VS Code, we are using similar code structure which we used previously. एक resource group बना रहे हैं and we are creating 2 storage accounts. ठीक है. Now as we discussed in some previous videos कि क्या commands हम use करते हैं. So let me initialize the Terraform. Now it is initializing the backend, installing the required plugins which we have used, and ये एक setup करके देगा हमें आगे proceed करने के लिए. If you want to learn more about all the Terraform commands, then मैं उसका link छोड़ दूंगा description में और इस I button में भी, so you can go and understand more about all the Terraform commands, and we have discussed few of the most important Terraform commands. Now it is initialized, and now let me go with Terraform plan. So it is checking it. Now you can see कि यहाँ पे कुछ तो आया है. So it is state file lock info. तो state file lock क्या होता है इसके बारे में we will discuss soon. पहले let's see few more things. So Terraform plan मुझे दिखा रहा है 3 to add, as we are adding 2 resource group, 2 storage account and 1 resource.
नाउ लेट मी गो विद टेराफॉर्म अप्लाई। ठीक है, अब यहाँ देखना वी हैव डॉट टेराफॉर्म का फोल्डर टेराफॉर्म लॉग डॉट एचसीएल का एक फाइल। अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ नोटिस करना इस पर्टिकुलर पैन पे। ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग it has created a lock on the state file. It is a temporary file. जब हम अप्लाई करते हैं तो एक लॉक क्रिएट करता है। Okay, I need to add yes, and now it is trying to create the resources. Yeah, you can see that it is creating. So the creation of resources can take some time. So I will try to fast forward it. अभी टाइम लग रहा है। You can see this terraform.tf state. ये यहाँ पे पहले नहीं था। जब ये क्रिएशन होने लग गया तो our Terraform created this state file with the name as terraform.tf state. .tf state इसका एक्सटेंशन है, मेजॉरिटी ये इम्पोर्टेंट है। एक बार बन जाने दो फिर we will see कि उस स्टेट फाइल में है क्या। ठीक है, it is just creating the storage accounts now. RG बन चुका है, you can see. Okay, one of the storage account is also created, two of the okay, तीनों बन चुके हैं हमारे। You can see apply complete, 3 resources added. अब चलते हैं यहाँ पे terraform.tf state में है इसको एक बार बताओ। तो ठीक है, क्या है यहाँ पे थोड़ी डिटेल्स है हमारे टेराफॉर्म के बारे में, टेराफॉर्म के वर्जन के बारे में। फिर ये बता रहा है रिसोर्स ग्रुप, हमने रिसोर्स ग्रुप की आईडी हमने आउटपुट कर रखी है हमारे कोड में। फिर वो आउटपुट का डिटेल दिखा रहा है। फिर अब रिसोर्सेज के बारे में बताता है क्या हमने बनाया है। एक बनाया हमने ये रिसोर्स ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे इट इज ऑल्सो शोइंग मी द आईडी, लोकेशन, नेम, जितने भी डिटेल्स है वो दिखा रहा है। फिर हमने बनाया है एक स्टोरेज अकाउंट, फिर इज शोइंग द स्टोरेज अकाउंट का नेम। ठीक है, जितने भी स्टोरेज अकाउंट के रिलेटेड डिटेल्स हैं जो इनके डिफॉल्ट्स भी रहते हैं वो सब, इसका आईडी दिखा रहा है मुझे। ठीक है, सारे जो कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं डिफॉल्ट वो सब इस पे शो कर रहा है। गोइंग डाउन, नाउ इट इज शोइंग द सेकंड स्टोरेज अकाउंट व्हिच वी क्रिएटेड, एसटीजी अकाउंट 2। ठीक है, उसमें भी सारे डिटेल्स दिखा रहा है। ये सारी चीजें हैं। ये रिसोर्स ग्रुप नेम कौन सा यूज किया वो भी दिखा रहा है। And you can see this particular things, dependencies, Azure RM resource group dot resource group। तो ये यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि डिपेंडेंसी किस पे है, जबकि हमारे main.tf में हमने कहीं पे भी डिपेंडेंसीज करके कुछ भी वर्ड नहीं ऐड किया है। ठीक है, बिकॉज टेराफॉर्म इंटरनली ही डिपेंडेंसीज को समझ लेता है और उसे फाइनली एंड द स्टेज इन द स्टेट फाइल वो शो भी करता है। सो दिस इज लोकल स्टेट फाइल, हमारे पास लोकली अवेलेबल है, हम इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं राइट नाउ। अब लेट मी डू दिस, लेट मी गो टू द Azure पोर्टल और जो दो स्टोरेज अकाउंट बनाया मैंने उसमें से एक डिलीट करता हूँ। लेट मी गो टू Azure पोर्टल। ठीक है, लेट मी गो टू माय पर्टिकुलर रिसोर्स। आज अब इट इज शोइंग मी 2 स्टोरेज अकाउंट। मैं ये सेकंड वाला डिलीट कर देता हूँ जस्ट टू शो यू क्या हो सकता है। आई एम डिलीटिंग इट, लेट मी आल्सो एनहांस द साइज ऑफ दिस। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट। ठीक है, okay, so it has been deleted. Now we can see that we have only one storage account on our Azure के पोर्टल। ठीक है, अब जाते हैं VS कोड पे फिर से। मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल फिर से टेराफॉर्म प्लान चलाता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं टेराफॉर्म प्लान में शो क्या करता है। तो देखो टेराफॉर्म प्लान चल चुका है। नाउ इट इज शोइंग 1 to add।
अब व्हेन आई वाज लर्निंग टेराफॉर्म, कुछ वीडियोस में मैंने देखा था कि दे जस्ट सेड कि टेराफॉर्म प्लान जब हम चलाते हैं, टेराफॉर्म प्लान क्या करता है कि टेराफॉर्म प्लान जस्ट चेक विद स्टेट फाइल कि स्टेट फाइल में वो चीज प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। स्टेट फाइल से ही कंपेयर करता है टेराफॉर्म प्लान और बस दे देता है। बट अगर स्टेट फाइल से कंपेयर करेगा तो हमारे स्टेट फाइल में तो अभी ये stg2 भी है, stg काउंट 2 भी है, ठीक है। बट सॉरी, हमारा स्टेट फाइल में stg अकाउंट 2 भी है, बट फिर भी प्लान हमें 1 to add दिखा रहा है, and 1 to add में it is the same storage account which we just now deleted. Let me show you that also. stg account 2 है, ठीक है। stg d हमने ये डिलीट किया। तो टेराफॉर्म प्लान जो है वो क्या करता है, वो हमारे कोड को भी चेक करता है, ठीक है, हमारा स्टेट फाइल को भी चेक करता है, और हमारे एज़्योर पोर्टल पे या जो भी हमारा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है उस पे भी जाके चेक करता है, तीनों को चेक करता है, अकॉर्डिंगली जवाब देता है कि क्या चीज चेंजेस हो रहा है, ठीक है। तो वही क्या हमारा टेराफॉर्म प्लान है, हमारा टेराफॉर्म प्लान ने देखा कि हमारे पास कोड है स्टोरेज अकाउंट 2 का, ठीक है, लेकिन वो पोर्टल पे प्रेजेंट नहीं है। तो पोर्टल पे प्रेजेंट नहीं है और हमारे पास क्योंकि कोड है तो इसलिए हमें 1 to add वो ऐड करने का दिखा रहा है, ठीक है। एंड नाउ लेट मी जस्ट टेराफॉर्म अप्लाई, ठीक है। सो नाउ टेराफॉर्म इज अप्लाइंग and creating that new or the addition of this particular storage account which we deleted. Okay. It is trying to add that particular storage account on our Azure portal. So you can see that it is creating only the storage account 2 because वही present नहीं है हमारे Azure portal पे, but हमारे कोड में present है, इसीलिए it is trying to creating that particular storage account. Okay, so the creation is completed now. अब हम अपने Azure portal पे जाके देखते हैं. Let me refresh it. You can see stgd अब यहाँ पे फिर से आ चुका है। अब हम एक दूसरा सिनेरियो देखते हैं, ठीक है। यू तुम देख रहे हो कि stgde है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं टेराफॉर्म स्टेट फाइल में जाता हूँ और यहाँ पे stgdev को मैं बदल देता हूँ, ट्रिपल वी ऐड कर देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब मैं एक बार फिर से टेराफॉर्म प्लान चलाता हूँ, लेट्स सी दिखता क्या है, आता क्या है। अब हमने स्टेट फाइल को ऑल्टर कर रखा है जो कि सही तरीका नहीं है, हमें स्टेट फाइल के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि इट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ ट्रबल। अभी हम और सिनेरियोस देखेंगे स्टेट फाइल में चेंजेस करके क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें शो कर सकती है। देखो टेराफॉर्म प्लान चलने के बाद 1 to add शो करता है, देखते क्या ऐड कर, इज सेइंग स्टोरेज अकाउंट 2 विल बी क्रिएटेड। अब ये क्यों कर रहा है, हमारे एज़्योर पोर्टल पे जाके देखें, ठीक है, तो stgdev अभी भी हमारे main.tf में भी वो अकाउंट है स्टोरेज अकाउंट 2 dew, बट अभी भी हमारे प्लान में ये शो कर रहा है कि ये dew वाला जो स्टोरेज अकाउंट 2 है वो क्रिएट करेगा। क्यों, बिकॉज अब ये कंपेयर कर रहा है हमारे स्टेट फाइल के साथ। तो देखो हमारे स्टेट फाइल में छेड़छाड़ हुई तो ये दिक्कत आई, अभी मैं अप्लाई करूंगा तो और प्रॉब्लम शो करेगी, बट लेट मी शो सम बिगर प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब मान लो क्या करते हैं, हम इस पर्टिकुलर सेकेंड स्टोरेज अकाउंट के डिटेल्स को ही हटा देते हैं,
मैं इस जो सेकेंड स्टोरेज अकाउंट है मैं इससे ही यहाँ से गैप कर देता हूँ स्टेट फाइल्स, गैप कर दिया। मेन में अभी भी यू कैन सी main.ts में वो अभी भी है हमारा कोड। मैं फिर से टेराफॉर्म प्लान चलाता हूँ। अब देखते हैं ये क्या शो करता है, क्योंकि हमारे main.ts में अभी भी वो कोड है, हमारे स्टेट फाइल में नहीं है, बट हमारे एजोर पोर्टल पे भी। तो अब वो क्या करेगा, वो फिर से स्टेट फाइल से चेक करेगा, वो देखेगा कि अरे स्टोरेज अकाउंट 2 तो वहां प्रेजेंट ही नहीं है स्टेट फाइल में, तो हमें वो ऐड करना चाहिए। तो हमारे टेराफॉर्म प्लान में वो शो करेगा कि 1 नीड्स टू बी एडेड, एंड वो 1 वही रिसोर्स रहेगा जो हमने अभी स्टेट फाइल से हटाया, दैट इज स्टोरेज अकाउंट 2 व्हिच इज नेम्ड एज stgdebb। यू कैन सी 1 to ऐड आ गया है। अब मैं तुम्हें ऊपर जाके दिखाता हूँ, ये दिस विल बी क्रिएटेड, ठीक है, लेकिन हमारे एजोर पोर्टल पे ये अभी भी है, ठीक है। तो अब मैं अप्लाई करके देखता हूँ कि क्या होता है। ये मैं ऑटो अप्रूव लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो टेराफॉर्म अप्लाई क्या करता है, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्स है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे एजोर पोर्टल पे, तो अब बना तो सकता नहीं है दोबारा से, क्योंकि वो हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब वो कुछ एरर देगा, वो क्या एरर देगा वी विल सी। तो एरर आ गया है, इट वाज ट्राइंग टू क्रिएट दैट पर्टिकुलर स्टोरेज अकाउंट, ठीक है, लेकिन अब एरर क्या है, error a resource with id this already exists। see it is showing you the error कि ये जो resource है वो already present है Azure पे। to be managed by a Terraform this resource needs to be imported into the state file। अब इसको import करना पड़ेगा, एंड हमने import कमांड के बारे में हमारे जो इम्पोर्टेंट कमांड्स वाले वीडियो है उसमें बात की है। तो Terraform import एक कमांड होती है, और इवन Terraform import का एक ब्लॉक भी आता है, मतलब Terraform import ब्लॉक। तो उसमें बेसिकली हमें जो पर्टिकुलर रिसोर्स को इंपोर्ट करना है उसके बारे में कुछ डिटेल्स डालते हैं, लाइक आईडी क्या है उसका, ये पर्टिकुलर ये नेम क्या है, ठीक है, वो सब डालते हैं तो वो इंपोर्ट होता है। अब इंपोर्ट का मतलब क्या, इंपोर्ट का मतलब हमारे टीएफ फाइल में कोड है, हमारे एजोर पोर्टल पे भी वो पर्टिकुलर रिसोर्स है, हमें इंपोर्ट करना है ये डिटेल कि हमारे पास वो रिसोर्स सही में अवेलेबल है इनटू दी स्टेट फाइल जहां पे गायब है उस रिसोर्स के डिटेल्स। हम जब इंपोर्ट कमांड या इंपोर्ट ब्लॉक यूज करेंगे तो टेराफॉर्म स्टेट फाइल में भी वो डिटेल्स फिर से यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। बट इंपोर्ट के बारे में वी आर नॉट गोइंग टू सी इट है, ठीक है, वो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बात कर लिया है, वो यू कैन गेट इट फ्रॉम दी डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन। यहाँ पे चलो हमने एक ही रिसोर्स को गायब किया, क्या करते हैं हम स्टेट फाइल उड़ा देते, लोकली है हमारे हाथ में सब कुछ है, स्टेट फाइल उड़ा देते, डिलीट, ठीक है। और ये जो बैकअप है मैं इसको भी डिलीट, स्टेट फाइल उड़ा दिया हमने, यू कैन सी यहाँ पे स्टेट फाइल नहीं है। अब मैं फिर से टेराफॉर्म प्लान चलाता हूँ, अब देखो स्टेट फाइल उड़ गया, मतलब देयर इज नो रिकॉर्ड एज पर आवर टेराफॉर्म कि हमने ये रिसोर्सेज कभी बनाए ही हैं, जबकि हमारे एजोर पोर्टल पे ये सारे रिसोर्सेज, ये तीनों के तीनों रिसोर्सेज, रिसोर्स ग्रुप एंड 2 ऑफ द स्टोरेज अकाउंट्स आर प्रेजेंट इन रियल वर्ल्ड। हमारा प्लान चल गया, यू कैन सी 3 टू ऐड। अब ये फिर से बोल रहा है ये तीनों ऐड करने हैं तुम्हें, क्यों, क्योंकि स्टेट फाइल ही नहीं है, स्टेट फाइल नहीं है मतलब स्टेट फाइल नील है, कुछ भी नहीं है, खाली है, तो इट इज ट्राइंग टू क्रिएट। एक हमने हटाया था तो एक बनाने जा रहा था, स्टेट फाइल ही उड़ा दिया तो ये सब बनाना चाह रहा है। अब तुम समझ सकते हो कि स्टेट फाइल कितना इंपॉर्टेंट है। स्टेट फाइल अगर तुम्हारा उड़ गया, मान लो यार 3 ही रिसोर्सेज है, तुम उसे इंपोर्ट कमांड से इंपोर्ट कर लोगे, बट जस्ट इमेजिन जहां 50 100 200 रिसोर्सेज होते हैं, तुम्हें सब पे इंपोर्ट कमांड या सब पे इंपोर्ट ब्लॉक डालना पड़ेगा टू इंपोर्ट इट, एंड दैट इज अ वेरी टीडियस जॉब, ट्रस्ट मी। प्लस स्टेट फाइल में तुम्हारे जो भी सेंसिटिव डेटा थे, अगर तुम उसे ओपनली दे रहे हो, मान लो
मान लो 10 लोग हैं टीम में, वो लोकली अवेलेबल है, सबके लिए एक्सेसिबल है, कोई बंदा जाकर के गलती से उसे डिलीट कर दिया, बस हो गया, फिर उसे इंपोर्ट करने में लगाओ टाइम, ठीक है। तो इसीलिए स्टेट फाइल को ना ही लोकली रखना चाहिए, ना ही इजीली एक्सेसिबल फॉर ऑल रखना चाहिए, उसे हमें रखना चाहिए एक रिमोट बैकएंड में, एक रिमोट जगह पे, जहां पे उसे एक्सेस करना सबके लिए इतना इजी नहीं हो। पर्टिकुलर टीम होगी जो स्टेट फाइल को एक्सेस कर सकती है नीड पड़ने पे, कुछ चेंजेस चाहिए, कुछ समझना है, कुछ ड्रिफ्ट मैनेजमेंट के टास्क करने हैं, तो कुछ पर्टिकुलर लोगों पे वो एक्सेस रह सकती है, बट सबके लिए वो इजीली एक्सेसिबल ना हो, हमें उसे एक ऐसी जगह पे स्टोर करना है, और लोकली तो बिल्कुल नहीं स्टोर करना है, तो हम उसे रिमोटली किसी जगह पे स्टोर कराते हैं। हम अभी देखेंगे कि रिमोटली कैसे स्टोर कराते हैं। उसके पहले कुछ फायदे भी जान लेते हैं उसके बारे में, कि अगर हम रिमोट स्टोर करा रहे हैं, अभी तो मैं चलो एक अकेला बंदा काम कर रहा हूँ मेरे टेराफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, तो ठीक है, लोकली भी दिख जा रहा था, चलता है। बट मान लो मेरे साथ और 10 लोग काम कर रहे हैं, उन्हें भी अपडेट करना है टेराफॉर्म को, कोड को, मुझे मान लो सिर्फ स्टोरेज अकाउंट बनाना है, किसी को सिर्फ से क्यू बनाना है, किसी को सिर्फ एक्शन ग्रुप्स बनाना है, तो मान लो ऐसा टास्क असाइन है, तो स्टेट फाइल तो सेम ही रहेगा, अब हम 10 स्टेट फाइल तो नहीं बनाएंगे, तो हमें उसी स्टेट फाइल में अपडेट करना है। यहाँ पे भी रिमोट बैकएंड काम आता है कि वो हमें कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट दे देता है, कि अगर 10 लोग हो, 100 लोग भी हो, तो एक स्टेट फाइल तुम्हारा एक जगह पे है प्रेजेंट, ठीक है, तुम कुछ भी चेंजेस करोगे वो ऑटोमेटिकली वहां से चेक करेगा एंड अपडेट करेगा, and it also obviously contains the versioning and stuff. अब हम रिमोट बैकएंड कैसे सेटअप करें, ठीक है, पहले मैं क्या करता हूँ, इन सबको फिर से हटा देता हूँ तुम्हें प्रॉपर दिखाने के लिए। ठीक है, नाउ इट इज ऑल क्लियर। अब मैं चलता हूँ अपने एज़्योर पे, ठीक है, मैं चलता हूँ एक नया रिसोर्स ग्रुप बनाने। उसके पहले मैं इन सबको भी डिलीट कर देता हूँ, फिर से हम लोग देखेंगे जब रिमोटली काम कर रहे हैं तो कैसे सारे चेंजेस शो करेंगे। ये जब तक मैं डिलीट हो रहा है, मैं तब तक मैं एक न्यू रिसोर्स ग्रुप बना लेता हूँ, क्रिएटिंग रिसोर्स ग्रुप, ठीक है। अब मैं एक रिसोर्स ग्रुप बनाता हूँ टेराफॉर्म के नेम से, मैं फिलहाल इंडिया में हूँ, क्रिएट दिस टेराफॉर्म नेम से एक रिसोर्स ग्रुप में बना रहा हूँ, ठीक है। अब रिमोट बैकएंड मतलब क्या, रिमोट बैकएंड मतलब कि एक पर्टिकुलर जगह जहां पे तुम अपने टेराफॉर्म के स्टेट फाइल को रिमोटली स्टोर कर सकते हो। अब स्टोर करना है तो स्टोर कहाँ करें, स्टोरेज अकाउंट में करेंगे, तो एक स्टोरेज अकाउंट बनाता हूँ मैं, ठीक है। so, उसी पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप में एक स्टोरेज अकाउंट बनाऊंगा। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, जो तुम्हारा रिमोट बैकएंड है ना, उसे तुम एक दूसरे रिसोर्स ग्रुप में ही बनाना, ठीक है, सेम रिसोर्स ग्रुप में मत बनाना जिसमें तुम चेंजेस ऐड कर रहे हो, मतलब जिसमें तुम टेराफॉर्म के थ्रू रिसोर्सेज डाल रहे हो। एक दूसरे रिसोर्स ग्रुप बनाओ सेपरेटली, दिस इज गुड प्रैक्टिस आई एम टॉकिंग अबाउट। एक दूसरे रिसोर्स ग्रुप बनाओ, उसमें एक पर्टिकुलर स्टोरेज अकाउंट बनाओ, ठीक है, और उसमें फिर हम आगे देखेंगे, हम कंटेनर बनाएंगे और वहां पे उसे स्टोर करेंगे। अब मैं इसको टेराफॉर्म नाम देने की कोशिश करता हूँ, देखो हमारा वो रिसोर्स ग्रुप डिलीट हो गया है, टेराफॉर्म इज ऑलरेडी टेकन, तो टेराफॉर्म कोड बैकएंड अगर मैं डाल के देखूं, हाँ ठीक है, ये चल रहा है। कोड बैकएंड डजंट साउंड गुड, टेराफॉर्म रिमोट बैकएंड ट्राई करता हूँ, ये भी टेकन। तो एज यू मस्ट बी नोइंग कि जो स्टोरेज अकाउंट नेम है वो यूनिक होना चाहिए, मतलब कहीं और भी किसी भी जगह किसी भी सब्सक्रिप्शन में वो सेम नेम का स्टोरेज अकाउंट नहीं होना चाहिए। ये इंडिया ले रहा है, एंड लेट्स दिस बी एज इट इज, स्टैंडर्ड रखते हैं, फिलहाल मैं एलआरएस रख रहा हूँ। अब मैं जा रहा हूँ एंड क्रिएट, ठीक है, तुम देख रहे हो ये रिसोर्स ग्रुप टेराफॉर्म है, इसके अंदर मेरा स्टोरेज अकाउंट नेम है टेराफॉर्म कोड बैकएंड।
अब मैं इसे क्रिएट कर रहा हूँ। ये सब मैं तामझाम कर रहा हूँ हमारे रिमोट बैकएंड को सेट करने के लिए, रिमोट बैकएंड को डालने के लिए। ठीक है, इट इज नाउ क्रिएटिंग दिस पर्टिकुलर स्टोरेज अकाउंट। तो हमारा स्टोरेज अकाउंट बन चुका है। लेट्स गो टू दैट रिसोर्स, terraform code backend। अब हम यहाँ पे जाते हैं, कंटेनर एक बनाते हैं, कंटेनर के अंदर हम वो फाइल को स्टोर करेंगे। ठीक है, अब एक कंटेनर बना देते हैं terraform के ही नेम से। तो तुम्हें इसमें चेंजेस करने हैं, तो तुम्हें हमारे जो भी हमने SPN को दे रखा है हमारा terraform के थ्रू चेंजेस करने के लिए, उसे हमें यहाँ पे कंट्रीब्यूटर रोल दिलाना पड़ेगा पहले। कंट्रीब्यूटर, या कंट्रीब्यूटर रोल पे जाते हैं। इसमें हम ऐड करते हैं हमारा TF ऐप एप्लीकेशन को, जिससे मैंने दे रखा है सारे एक्सेसेस। ठीक है, तो हमारा ये जो SPN है हम इसे यूज कर रहे थे अपने terraform कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो अब ये हमारे terraform के पर्टिकुलर कंटेनर पे चेंजेस कर सकता है। ठीक है, नाउ अभी तुम देख रहे हो खाली है। अब मैं क्या करता हूँ, providers.tf में जाके terraform का रिमोट बैकएंड के लिए कोड सेट। तो मैंने यहाँ पे फिलहाल कॉपी किया हुआ था from the terraform का पेज। You can also go here, terraform backend। यहाँ पे जाकर के बैकएंड टाइप में ये यहाँ से पर्टिकुलर कोड को देख सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, हम इसे अपडेट कर लेते हैं फिलहाल अपने हिसाब से, अपने जो भी डिटेल्स उसके हिसाब से। तो हमारा रिसोर्स ग्रुप नेम है terraform, स्टोरेज अकाउंट नेम है हमारा terraform कोड बैकएंड। ठीक है, कंटेनर नेम है हमारा terraform, और हम की में क्या ऐड करना है कि हमारा जो स्टेट फाइल रहेगा उसका क्या नेम रहेगा। तो मैं अब यूज कर रहा हूँ terraform.tf state। तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, अगर मान लो तुम्हारा अलग अलग एनवायरनमेंट है dev test plot, तो तुम यहाँ पे terraform की जगह dev.tf state plot.tf state यूज कर सकते हो, और इस तरह से ये बैकएंड Azure RM यूज कर रहा है। तुम्हारा AWS है तो AWS के हिसाब से तुम्हें सेटअप करना। ठीक है, लेट मी सेव दिस, नाउ लेट मी रन terraform init again, because now it will initialize the backend, it will setting up the things in the backend, the remote backend which we have just now created, like the storage account and the container। ठीक है, ओके, सो terraform init चल चुका है। तुम ऊपर जाके देखोगे, you can see successfully configured the backend Azure RM। ओके, सो इसने हमारे रिमोट बैकएंड को कॉन्फ़िगर कर दिया। अब मैं terraform प्लान चलाता हूँ। सो ऑब्वियसली terraform प्लान हमें दिखाएगा कि 3 रिसोर्सेज क्रिएट करने हैं। फिर मैं terraform अप्लाई चलाऊंगा, और तब हमें दिखेगा कि पहले जो हमारा जो स्टेट फाइल है वो यहाँ लोकली दिख जा रहा था, वो अब लोकली नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें वो उस कंटेनर में दिखेगा। ठीक है, अप्लाई चल चुका है, 3 टू ऐड आ चुका है। अब मैं सॉरी प्लान चल चुका है, 3 टू ऐड आ चुका है। अब मैं terraform अप्लाई करता हूँ। हाँ, तो एक और चीज इंपॉर्टेंट है, जो स्टेट फाइल में जो भी चेंजेस होते हैं वो terraform अप्लाई कमांड के थ्रू ही होते हैं। ठीक है, कोई और कमांड ऑब्वियसली डिस्ट्रॉय वगैरह कर सकता है, बट जो जनरल क्रिएशन रिलेटेड कमांड है, इनिट फॉर्मेट हो गया, वो सब हो गया, वैलिडेट हो गया, प्लान हो गया, अप्लाई हो गया, इन सब में सिर्फ terraform अप्लाई जो है ना, वही तुम्हारे स्टेट फाइल में ऑल्टरेशन कर सकता है।
ठीक है। तो जब तुम्हारा स्टेट फाइल जब तुम्हारा टेराफॉर्म अप्लाई फेज चलाएगा, अप्लाई कमांड चलाएगा, तभी तुम्हारा स्टेट फाइल चेंज होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो, ठीक है, इसलिए मैंने तुम्हें बताया। जब टेराफॉर्म अप्लाई चलेगा तभी स्टेट फाइल में चेंजेस होंगे या तभी स्टेट फाइल बनेगा, उसके पहले स्टेट फाइल नहीं बनता है। अप्लाई के बाद ही स्टेट फाइल में चेंजेस ये होते हैं, या अप्लाई पे ही स्टेट फाइल क्रिएट होता है। यू कैन सी द रिसोर्स ग्रुप क्रिएशन कंप्लीट। मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ इसे, टेराफॉर्म के हमारे कंटेनर को। You can now see terraform.tf state has been created here, ठीक है। बट तुम देखोगे यहाँ लोकली नहीं है अब वो, क्यों? क्योंकि हमने रिमोट बैकएंड उसका सेटअप कर लिया था, ठीक है। अब देखो, ये मैंने तो बैकएंड एज़्योर आरएम का कोड सेटअप किया। हमारे पास ना एक तरीका होता है कि हम टेराफॉर्म अप्लाई कमांड में ही, कमांड के साथ हम कुछ कुछ और कॉन्फ़िगरेशंस ऐड करें, एट्रीब्यूट्स ऐड करें कि हमारा रिमोट बैकएंड करना है और उसका रिसोर्स ग्रुप का नेम ये है, टेराफॉर्म सॉरी स्टोरेज अकाउंट का नेम ये है, कंटेनर का नेम ये है। तो हम उस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ जाऊँ तो मैं इस पर्टिकुलर दिखाऊँ, यू कैन सी दिस कैन बी पास्ड वाया बैकएंड कॉन्फ़िग। मैं इसे और जूम करता हूँ। क्या करना है कि बैकएंड कॉन्फ़िग के तरह ऐड कर सकते हैं, हाइफन बैकएंड कॉन्फ़िग इक्वल्स रिसोर्स ग्रुप नेम इक्वल्स रिसोर्स ग्रुप का नेम। तो इस तरह से ना तुम हमारे टेराफॉर्म अप्लाई कमांड में भी इसे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी एक तरीका होता है। मतलब वो कहाँ काम होता है, क्योंकि मान लो तुम्हें डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में क्रिएट करना है, तो तुम क्या कर रहे हो, इनपुट ले रहे हो, ये सेटिंग कर दे रहे हो कि जब डेफ चलाना है तो डेफ का रिसोर्स ग्रुप नेम, स्टोरेज अकाउंट नेम, कंटेनर नेम, की नेम आए। जब prod चलाना तो prod का आए एज एन इनपुट, ठीक है। जैसे मेनली वो पाइपलाइन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अभी भी हमारा स्टेट फाइल है, लेट्स सी। ओके, नाउ इट इज शोइंग 3 हैज बीन एडेड। एक बार हम यहाँ पे जाके देख भी लेते हैं कि सही में हमारे तीनों रिसोर्सेज बन चुके हैं कि नहीं, जस्ट फॉर योर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। जब तक ये खुल रहा है, मैं तुम्हें इसे स्टेट फाइल को भी ओपन करके दिखाता हूँ, terraform.tf स्टेट फाइल। तुम अब इसे एडिट में जाओगे ना तो तुम्हें दिखेगा एज इट इज, सेम टू सेम स्टेट फाइल जो तुम्हें लोकली दिखा था। टेराफॉर्म के डिटेल्स हैं, आउटपुट है, फिर तुम्हारा रिसोर्स ग्रुप के डिटेल्स, दोनों स्टोरेज अकाउंट के डिटेल्स, सेम टू सेम चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जा करके तुम्हें वेरीफाई भी कर देता हूँ कि हमारे वो रिसोर्स RGDEF बन चुका है और RGDEF के अंदर में वो दोनों के दोनों स्टोरेज अकाउंट भी बन चुके हैं। सो नाउ आर स्टेट फाइल इज प्रेजेंट रिमोटली। कोई भी इस सेम कोड को यूज कर सकता है अपने लोकल मतलब ऑब्वियसली वर्जनिंग के थ्रू, गिटहब के थ्रू, और वहां पे वो चेंजेस कर सकता है, एडिशन कर सकता है, और वो तुम्हारा स्टेट फाइल अपडेट होते जाएगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूँ, स्टेट फाइल लॉकिंग। स्टेट फाइल लॉकिंग क्या होता है ना कि जब तुम कुछ अप्लाई रन कर रहे हो, ठीक है, तो जैसे तुमने देखा था कि मैंने एडिट कर दिया था स्टेट फाइल को, मैं ऑनलाइन भी इसे एडिट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास फिलहाल वो एक्सेस है। मैं RGDEF को एक और वी डाल के सेव कर सकता हूँ। तो क्या होता है कि स्टेट फाइल लॉकिंग ये होता है कि जब भी तुम अप्लाई कर रहे हो तो तुम इसे स्टेट फाइल को कुछ चेंज नहीं कर पाओ, क्योंकि ये तुम्हें अलाउ नहीं करेगा। मान लो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, यहाँ पे RGDEV है, मैं इसे एक और भी ऐड कर दे रहा हूँ और इसे सेव कर दे रहा हूँ। देखो ये सेव हो जा रहा है, सेव हो गया है, ठीक है। यू कैन सी सेव्ड आ गया था। अब RG डबल भी हो गया, ठीक है। मैं इसे वापस RGDEV पे कर दे रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि कुछ चेंज करता हूँ, main.tf में जाता हूँ, फिर इसका नाम में ही एक और भी ऐड कर देता हूँ। अब मैं टेराफॉर्म प्लान चलाता हूँ, ठीक है। वो ऑब्वियसली मुझे बोलेगा कि हाँ भाई ये चेंजेस हो रहे हैं, DEV टू डी, मतलब एक और भी ऐड करे, बट हाँ इट अल्टीमेटली वी आर नेमिंग द चेंज, तो वो चेंजेस प्रॉपर क्रिएशन पे ही दिखा देगा, ठीक है। तो आई एम जस्ट शोइंग यू स्टेट फाइल लॉकिंग होता है कि नहीं होता, और हो रहा है तो क्या हमें एरर्स आ सकते हैं। सो हमारा टेराफॉर्म प्लान चल चुका है। यू कैन सी 1 टू ऐड 1 टू डिस्ट्रॉय। सो क्योंकि नेम हम चेंज कर रहे हैं तो वो टोटली उसको रिक्रिएट कर रहा है, ठीक है। यू कैन सी ये जो नेम है STGDEV टू STG ट्रिपल
भी हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, टेराफॉर्म अप्लाई चलाता हूँ, उसके बारे में मैं एक बार इसे बैक करके रिफ्रेश कर देता हूँ। अभी मैं जाके अभी से दिखाऊंगा तुम्हें। टेराफॉर्म अप्लाई किया, ठीक है। तो अभी तो पहले ये जस्ट हमें शो करेगा, फिर मैंने क्योंकि ऑटो अप्रूव नहीं डाला, ये मेरा से यस मांगेगा। मैंने इसलिए जानबूझ के ऑटो अप्रूव नहीं डाला क्योंकि जब ये क्रिएशन स्टार्ट करता है ना, जब मैं मान लो यस डालता हूँ, ये जब ये जहां से क्रिएशन स्टार्ट करता है वहां पे ये स्टेट फाइल को लॉक कर देता है। तब मेरे पास एक्सेस होते हुए भी मैं कुछ चेंजेस उस पर नहीं कर पाऊँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे यस डाल रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, स्टेट फाइल को खोलता हूँ। यू कैन सी अभी डिस्ट्रॉइंग करना शुरू कर दिया है, चेंजेस करना शुरू कर दिया है स्टेट फाइल में, ठीक है। स्टेट फाइल का ये खुल गया, इट इज स्टिल क्रिएटिंग। यू कैन सी यहाँ पे दिस ब्लॉक हैज एन एक्टिव लीज एंड कैन नॉट बी डिलीटेड और एडिटेड, क्लिक हियर टू लर्न मोर अबाउट द लीज। तो इसने हमारे स्टेट फाइल को लॉक कर दिया है। टेराफॉर्म के पास ये बहुत ही अच्छा फीचर है, स्टेट फाइल लॉक कर देता है जब कुछ चेंजेस हो रहे हैं। इसमें कहाँ बेनिफिट आता है, तो अभी तो मैं तुम्हें मैनुअली करके दिखा रहा हूँ, बट मान लो मैं टेराफॉर्म में चेंजेस कर रहा हूँ, टेराफॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ, सेम टाइम पे मेरा कलीग भी टेराफॉर्म अप्लाई कर रहा है, टेराफॉर्म पे चेंजेस कर रहा है, तो वो दोनों का नहीं करने देगा। मान लो मैंने पहले शुरू कर दिया, ठीक है, तो जब तक मेरा वो चेंजेस नहीं चलेगा, नहीं कंप्लीट होगा, तब तक वो मेरे कलीग को टेराफॉर्म स्टेट फाइल में को अपडेट करने नहीं देगा। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ स्टेट फाइल लॉकिंग। ऐसे एक साथ मिक्स नहीं हो जाता, क्योंकि मान लो मैं अभी stgd ट्रिपल भी डाल रहा हूँ, वो बंदा कर रहा है stgd 4v सेम रिसोर्स पे, ठीक है, तो फिर वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए वो लॉक कर देता है स्टेट फाइल को। जब एक टेराफॉर्म अप्लाई चल रहा है तो दैट स्टेट फाइल इज लॉक, कोई चेंजेस उस पे नहीं किया जा सकता उस पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। इट इज स्टिल ट्राइंग टू क्रिएट, डिस्क्रिप्शन हो चुका है, ठीक है। अगर मैं तुम्हें यहाँ दिखाऊं, लेट मी रिफ्रेश इट, ओके, सो इट हैज बीन क्रिएटेड नाउ। हाँ, क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब ये क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं फिर से बैक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, इसे अब खोलता हूँ, ठीक है। अब मैं फिर से एडिट पे जाता हूँ। अब देखो, अब मेरे पास है ऑप्शन एडिट करने का, उस टाइम पे नहीं आ रहा था, उस टाइम पे वो वहां पे लीज दिखा दे रहा था, तो मैं एडिट ही नहीं कर पाता। तो ये था स्टेट फाइल लॉक। दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड फीचर्स अबाउट टेराफॉर्म, ठीक है। सो यप, टेराफॉर्म स्टेट फाइल के बारे में हमने समझा, इट इज सोर्स ऑफ ट्रुथ फॉर टेराफॉर्म। बेनिफिट्स क्या है हमने समझा, हमने स्टेट फाइल को देखा, लोकली भी देखा, हमने उसके लिए रिमोट बैकएंड भी सेटअप किया, उसे रिमोटली भी सेटअप किया, रिमोट रख करके हम उसके साथ हमने उसे काम भी किया, हमने टेराफॉर्म प्लान अप्लाई भी किया। तो आज हमने टेराफॉर्म स्टेट फाइल के बारे में डिटेल में सीखा है, ओके। हमने इवन रिमोट बैकएंड को भी सेटअप किया है, which is very important for Terraform infrastructure deployments in your companies, क्योंकि कंपनीज में हम इसे बैकएंड पे ही रखते हैं, रिमोट बैकएंड पे ही रखते हैं, क्योंकि कोई भी डेटा है, कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, कोई ऐसे ही आया, कोई इंटर्न आया भाई, उससे डिलीट कर दिया उसने टाइम पास के लिए, फिर हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। जितने भी रिक्वायर्ड लिंक्स है टेराफॉर्म के डॉक्यूमेंट्स के, मैं उसे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तुम्हें अगर कुछ समझ नहीं आया, आई नो इट वाज अ बिट लॉन्ग एंड अ कॉम्प्लेक्स वीडियो, तुम्हें कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आया, यू कैन डेफिनेटली पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एंड कूल, अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और सीखेंगे। मेनी मोर वीडियोस आर इन पाइपलाइन राइट नाउ इन दैट टेराफॉर्म प्लेलिस्ट, ठीक है। दिस प्लेलिस्ट विल डेफिनेटली गोना हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग टेराफॉर्म डीपली, और फॉर श्योर तुम काम तो शुरू कर सकते हो। अभी तक मैंने जितने भी चीजें तुम्हें सिखा दिया इस टेराफॉर्म के प्लेलिस्ट में, तुम इससे अपने कंपनी में भी काम शुरू कर सकते हो टेराफॉर्म के ऊपर, ठीक है। So yeah, this was it for this video. See you in the next video.